नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ लोमश विदुआ. आई एम super excited to welcome you to my podcast, Podkatha. Before I start with the Podkatha, I want to first of all speak my heart out with the fact that there comes a point in time in your life wherein you want to do something, yet you are scared to do it, but you still want to do it. So I want to do this and share the stories of such professionals and high performing individuals who are contributing exceptionally well to the organizations, but more often than not we have seen the fact that entrepreneurs are being celebrated a lot, and the people, other persons who are contributing equally well to the success of the organizations and who are the important levers to the organization are often not given in the enough recognition which they are supposed to get. So, with that aim in mind, we want to celebrate such stories through Podkatha and share the stories of those professionals, those high performing individuals. So, today I want to talk about those professionals. With that aim in mind, today one of our guests is one such individual who comes from a small town, Ranchi, who is a lawyer by qualification and who started his career as a litigant, and moving up the ladder he worked with multiple MNCs, and currently he is working with one of the big four consulting firm, PwC, as an associate director. More than that, why I'm super honored and humbled to bring him to this episode, first episode of ours, is because of the fact that I have also been mentored by him. I think he has contributed a lot to my success in my career as well. It was not just to the success of the companies where he worked, but also to the people who worked with him. So one such so I'm very happy to welcome you to the individual that is Abhishek Anand himself. Welcome to Podkatha. I'm very truly humbled and grateful, sir, कि आज आप आए हो. This is my first episode. Thank So you. we will kickstart with our discussion. So main reason for calling you in this first episode of Podkatha was simply because हमारा जो objective था इस podcast से वो ये था कि we wanted to bring the professional stories and high performing individuals. सो बिकॉज क्या है कि आप सब जगह देखते हो एंटरप्रेन्योर्स की बस वाहवाही हो रही होती है, और एक एंटरप्रेन्योर में मान लो 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो उस 999 लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं. अब 999 लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योर हु इज़ जस्ट क्रिएटिंग द वैल्यू इन द एंटायर वैल्यू चेन इकोसिस्टम. तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी करते हैं. एंड आई वांट टू एक्चुअली हाईलाइट सम हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स. और इट्स नॉट जस्ट कि आप केवल हाई परफॉर्मिंग, आपने बहुत बढ़िया किया, बट आई हैव वर्कड विथ यू एंड आई हैव सीन कि मतलब द वे यू हैव मेंटर्ड मी आल्सो इन द, मतलब मेरा तो करियर ही स्टार्ट में आपके साथ हुआ था विद PwC एटसेट्रा. तो बस मैं वही डिस्कस करना चाहता हूँ. तो लेट्स जस्ट किक स्टार्ट. सो बिफोर वी बिगिन विद द सेशन, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस अबाउट योर बैकग्राउंड, एंड देन वी कैन जस्ट लेट जस्ट फ्री फ्लो इट. Okay, so CV वाला इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा. बिल्कुल नहीं, आप नॉर्मल रखो है. ऐसी बात. So okay, so see, I come from the northern or eastern side, I should say, the oldest capital of the country, Patliputra. So I was born in Patna. Wow. My parents moved from Patna to Ranchi, and my schooling was in Patna and Ranchi till my 12th standard. So that is one phase of life which is the best you can ever say, because वो उस तरह का environment भी है वहाँ पे. Education तो obviously है ही, obviously you would know. Biharis are famous for, you know, academics में excellence उनका throughout रहता है, हमेशा ही रहता है. And Ranchi, from an education perspective, has a very good environment. You'll find best schools. Sports बहुत encourage करते हैं. जैसे बिहार में when we were kids, स्पोर्ट्स को इतना बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था. बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट विच आई हैव सीन जब हम रांची शिफ्ट हुए. तो in our school, sports was a very important part of your education system. Wow, that's very strange actually. But because I started my preliminary classes, first second standard, और वहाँ पर स्कूल में पटना में ऐसा कोई स्पोर्ट्स सब्जेक्ट नहीं होता था. बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब जब भी रांची में स्कूल में ज्वाइन करा, तभी पता चला कि ओके, एनुअल डे भी कुछ होता है, स्पोर्ट्स डे होता है. स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करना होता है, फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर हाउस एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स होती है. तो वो एक अच्छा था, विच बिकॉज आई पर्सनली फील
playing a sport makes you a very much a team player. You understand the coordination, you understand how to work with other players. एक holistic personality Exactly. development So it is not only कि आप सिर्फ अपने पढ़ाई कर आपने एग्जाम लिखा और आप पास कर गए, बट दैट टीम बिल्डिंग एक्टिविटी जो अभी सिखाते हैं ना कॉर्पोरेट्स में, वो स्कूल में ही आ जाती है व्हेन यू प्ले अ टीम स्पोर्ट, बी इट फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हो तो. एंड I would say I was fortunate. My parents thought that I could do something good in life. तो उन्होंने थोड़ा एफर्ट ला के मुझे बाहर पढ़ने भेज दिया. So you were very क्या टॉपर पहले से या? नहीं. I was always a very mediocre average student school में. My father believed always that I am good in studies. But एक बंदा जो एग्जाम से पहले 3-4 घंटे पढ़ेगा उसको 90 नंबर आते होंगे, मुझे नहीं आए कभी. तो 60-70 नंबर आते थे, 60-70 कुछ ऐसा मार्क्स हमेशा आए, बोर्ड्स में भी 70s में ही आए, तो ठीक है. पर my dad went to Pune and Symbiosis with one of his seniors, कुछ काम था उनको, and there he met some of the law students. And he felt that जो स्कूल के 3rd-4th ईयर के बच्चे होते हैं ना, उनका लीगल एक्यूमेन इज वे बेटर देन लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, एटलीस्ट इन झारखंड, रांची, जो लोग, बिकॉज लॉ ऐसे ही बदनाम है कि जब कोई कुछ नहीं करता तो वो लॉ करके फिर प्रैक्टिस कर लेता है. टिपिकली इन टियर 3 सिटीज ये इशू है, इनफैक्ट माय सिटी आल्सो. हाँ, आई मीन इफ यू अगर आप इवन द पायनियर्स इन द इंडस्ट्री, जो पुराने लॉयर्स हैं, आप उनको भी सुनोगे, राम जेठमलानी और अदर्स, वो लोग भी वही बोलते थे कि कुछ नहीं था, बस ऐसा लॉ करना था तो लॉ कर दिया. अनलेस दे आर second, third generation of lawyers where they understand that what how important the legal profession is and what it can give to you as an individual. तो वो चीज़ थी. and then he thought I can do law. तो मैंने उस समय क्लैट नहीं होता था, हर लॉ स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे, और 2006 की बात है, 2006-07 की बात है, और उस समय रांची में सेंटर भी नहीं होता था, तो कैलकाटा वाज द नियरेस्ट सेंटर. सो अगर कल एग्जाम है तो हम आज रात की ट्रेन पकड़ के जाते थे कैलकाटा, और फिर मान लो NLU जोधपुर का एग्जाम अगर NUJS में है, तो तुम्हारा सिम्बाइसिस का एग्जाम मरीन अकेडमी कुछ 30-25 किलोमीटर दूर दूसरी जगह है. तो हाँ, तो एक दो, या तो सेम डे आप एक एग्जाम लिखो और दौड़ के फिर टैक्सी लेकर के जाओ दूसरी जगह, या फिर दोनों में से कोई एक चूज करो. तो वो थोड़ा उसका गुड साइड ये था कि एक एग्जाम अच्छा नहीं गया तो यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, और उसका बैड साइड ये था कि अगर सेम डेट पे 2 एग्जाम्स पड़ गए तो आपको एक ही कोई चूज करना है. एक एग्जाम अच्छा चला गया तो यू नेवर नो उसकी कट ऑफ क्या होगी, किसी और का कट ऑफ क्या होगा. सो in 2006 also I gave entrance exam. मेरा NLSIU में I think 120-115 ऐसा कुछ आया था, नहीं हुआ. सेकेंड ईयर में भी बच्चे भी कम लेते हैं ना वो लोग, 80 सीट्स उस समय, तो 80 होते थे हर. आई थिंक टॉप 6 नेशनल लॉ स्कूल 6 और 7 थे उस समय, सबके 80 सीट्स होते थे उस समय. या तो BA LLB होता था या BB LLB होता था, प्लस इंडिविजुअल एग्जाम्स हर कॉलेज. हाँ, हर उस समय क्लैट था ही नहीं. तो 2007 में व्हेन आई गेव NLU जोधपुर शायद 2-3 नंबर से छूटा. नालसार जनवरी में एग्जाम होता था इसी उस समय, वो XLI जमशेदपुर में सेंटर था. तो उसमें भी तो फिर आप ये करंट कॉलेज का फिर कैसे जो कुछ नहीं यार, मतलब सारे नेशनल्स में हुआ नहीं. तो फैक्ट तो यही है कि कहीं 3 नंबर से छूटा, 2 नंबर से, बट अगर तुम वो 2 नंबर का भी डिफरेंस देखो तो उसमें 15 बच्चे हैं. तो ऐसे ही थोड़ी ना हम लोग 140 करोड़. नहीं, मतलब मैं कंपटीशन बता रहा हूँ कि अगर मान लो 108 कट ऑफ है एंड इफ यू सिटिंग ऑन 105, between 105 and 108 there are like 25 odd students. Right. And especially on one score, एक मार्क. हाँ, करेक्ट. सेम 105 पे अभी जैसे IPL का स्टेटस है ना, कि 13 पॉइंट्स पे 12 पॉइंट्स पे 5 टीमें हैं, और नेट रन रेट का हिसाब है. तो वहां पे तो आई डोंट नो व्हाट वाज द क्राइटेरिया ऑफ पुटिंग समवन ऑन 82, 83, 84 अगर सबके 103 या 105 नंबर है. बट दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी. और हर बार वो ऐसा शीट देखनी पड़ती थी, वेटिंग लिस्ट 1-2 का, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का वेट करना पड़ता था. तो आई थिंक वन ऑफ माई सीनियर्स इन स्कूल वो ICFI में थे,
and he used to live in my same township in which we used to live. So that is how I got to know कि वो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम मैंने फॉर्म वहाँ का भी भरा था, मेरा निकल गया वहाँ पे. एंड देयर वाज अनदर कॉलेज जो तेरा कॉलेज है यूपीएस, उस साल खुला ही था, लॉस में शुरू हुआ था, एंड आई अपीयर्ड देयर एज वेल, वहाँ भी मेरा हो गया. पटना में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी था, चाणक्य, वहाँ भी हो गया था. पटना नहीं जाना था बिकॉज आधे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, तो मुझे एक वो बाहर पढ़ने वाली फीलिंग ही नहीं आती कि हर 2-3 दिन पे कोई आ जाता शायद मिलने के लिए. हाँ, सेम एनवायरनमेंट रहता. सो आई थॉट, और देहरादून इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो अभी तो बहुत चेंज हो गया, लेकिन व्हेन आई वेंट देयर इन 2007. So you were the one who guided your brother also along with you? So वो तो डिफरेंट स्टोरी है. मेरा भाई was always good in studies. He was one who used to get in 90s marks. उसको बीसीए करना था, कंप्यूटर में उसका बहुत इंटरेस्ट था. पता नहीं क्या, उसको बीटेक नहीं करना था, बीसीए करना था, या बीटेक के बारे में उसको पता भी नहीं था. फिर आई थिंक आफ्टर 10th ही वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि कंप्यूटर में कुछ करना है. पता नहीं किसी ने ज्ञान उसको दिया कि बीटेक तो आजकल इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, प्लेसमेंट होता है, अच्छा नहीं अगर अनलेस आप आईआईटी में पढ़ रहे हो या गुड टियर 1 कॉलेजेस, और कैंपस होता भी है तो 2 लाख 3 लाख का पैकेज मिलता है, और 10-15 हज़ार में बच्चे टीसीएस, विप्रो, ज्वाइन करते ऑल दी आईटी कंपनीज, उसमें इनिशियल पैकेज अगर आप अच्छी कॉलेज से नहीं हो तो यही मिलता है. एंड देन ही वेंट विथ मी. जब मैं जनवरी में गया था नालसार का एग्जाम देने के लिए, तो मेरे साथ वो भी गया, ऐसे ही छुट्टी थी उसकी, तो डैड के साथ चला गया वो. और एक्सएलआई जमशेदपुर में गया. हम वहाँ एग्जाम के लिए वेट कर रहे थे, और हमें वहाँ बच्चे दिखे जो एक्सएलआई में पढ़ रहे थे. दो इट्स नॉट एन लॉ स्कूल, बट उसको समझ में आया कि जो जेंट्री थी वहाँ पे जो एग्जाम लिखने आई थी, और जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो वो शॉर्ट्स में, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कॉफी मग, और वो घूम रहे थे कैंपस में. That's such a intimidating और एक न्यू एक्सपीरियंस. तो एक बच्चा जो हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में रहा, उसको वैसा कॉलेज दिखे, और वहाँ बच्चे इतनी कैजुअली शॉर्ट्स में क्लास करने जा रहे हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट उसको पता नहीं समहाउ क्लिक करा कि नहीं, लॉ है ना, थोड़ा ज़्यादा हैपनिंग है. तो मेबी दैट इज़ द रीज़न व्हाई ही आल्सो गॉट इनक्लाइन कि नहीं मुझे लॉ करना है. और कहीं उसने पढ़ लिया कि लॉ में भी अच्छा पैकेज मिलता है, अगर आप अच्छे लॉ स्कूल से निकलोगे तो 12-15 लाख का पैकेज आपको इनिशियली कैंपस पास करते ही मिल जाता है. तो उस समय लगता था 12-15 लाख इज लाइक ह्यूज अमाउंट. I mean अभी भी जब हमें, हाँ ऑब्वियसली, बट जब हमें 100-200 रुपए पॉकेट मनी मिलता, पॉकेट मनी तो अब मे बी हमारे ज़माने में कोई पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था. वो पिताजी के पास एक्स्ट्रा पैसे होते थे, या कोई रिलेटिव आया तो 100-150 रुपए दे गया, तो वही पॉकेट में अपने एक वॉलेट मेरा भाई रखता था, अपने बुक्स के पीछे छुपा के. उसमें वो नानी आई तो 100 रुपए, मौसी आई तो 100 रुपए, दादी गई तो 100-200 रुपए, वो सब कलेक्शन वही हमारा बैंक होता था, वही होता था. ऐसे में पर भाई को ज्यादा मिलते होंगे, छोटा भाई. हाँ, तो देखो कोई भी रिलेटिव आया तो कपड़े उसको मिलेंगे, पैसे उसको मिलेंगे. बड़े को तो हाँ बस ठीक है, 100 मिले तो, कपड़े तो हमेशा उसको ही मिलने होते. ये छोटा है तो ऑब्वियसली, पर ठीक है, मतलब वो अच्छा फेस था. मैं तो अभी भी बोलता हूँ, मतलब आई डोंट नो, नॉट एवरीवन वुड एग्री, बट बेस्ट फेस था स्कूल का. लाइफ में ना पूरे साल में 3 टेंशन होती थी सर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल्स, और कोई लोड ही नहीं होता था. सही बात है. घर में खाना क्या चाहिए बस ऑर्डर कर दो. पीने के लिए पानी भी आप कभी ग्लास किचन जाते नहीं थे, आवाज लगा दो मम्मी पानी चाहिए, और आ गया. टीवी पे देखते देखते खाना खा लो. लाइफ में जो लाइबिलिटी होती है वो तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं. तो बेस्ट था 5 बजे नहीं कि खेलने चले जाओ, एग्जाम है तो लिख देंगे, पेपर लिख देंगे, फेल करना तो बस ये इंश्योर करते थे कि फेल नहीं होना है बस. अदरवाइज वो थोड़ा सा, सिर्फ मार्च का महीना जो होता था ना, वो थोड़ा सा टेंशन वाला होता था कि जब रिजल्ट आने वाला होता था कि पास करके दूसरे क्लास में जाएंगे या नहीं, बट बाकी सब नॉर्मल वैसे ही चलता था, वो अच्छा था. तो वही जब देहरादून गए ना, तो इक्फाई में भी एंट्रेंस एग्जाम दिया, सब हो गया. तो एक फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज जॉइनिंग यूपीएस, शी टोल्ड मी तू यहाँ पे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा. मैंने बोला फर्स्ट टाइम कॉलेज खुला है, पता नहीं कैसी फैकल्टी है, क्या आएगी नहीं आएगी मालूम नहीं था. एंड एटलीस्ट उस समय इक्फाई के 3 बैच निकल चुके थे, तो मैं इक्फाई इज ओल्डर आल्सो. हाँ, तो सी इक्फाई एज एन इंस्टीट्यूशन इज क्वाइट ओल्ड, एंड दे हैव अ वेरी गुड एमबीए प्रोग्राम. लॉ भी खुला था, पर आई थिंक लॉ स्टार्टेड इन 2007 या 8. फर्स्ट ईयर लॉ जो था वो 3 इयर्स में उनको दे दिया, बिकॉज उस समय उनके पास
यूजीसी का अप्रूवल नहीं था या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इक्फाई रजिस्टर्ड नहीं था। तो फर्स्ट बैच जो था वो 3 इयर्स में ग्रेजुएट कर गया और उसके बाद से वी हैड अ इंटीग्रेटेड 5 ईयर MBB LLB प्रोग्राम। तो वो वहाँ जब कॉलेज गए ना तब पता नहीं बोलो शायद एज होना शुरू हो गया, मैच्योरिटी टीनेजर से थोड़े आगे बढ़ने लगे। तो समझ में आया कि पिताजी ने बहुत पैसे खर्च करके पढ़ने भेजा है, तो ध्यान पार्टी ऐश मौज से ज़्यादा थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी चला गया। लगा कि नहीं। और एंड देन आफ्टर फर्स्ट ईयर लॉ में ना हमारे समय में लॉ पेपर्स नहीं होते थे। वी वर टॉट इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बीए वाले सब्जेक्ट। हाँ, तो हमारा BB LLB था, तो वो थोड़े से BA के सब्जेक्ट्स, थोड़े से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद से लॉ पेपर शुरू हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, उसके पास भी CPC, CRPC। तो जैसे जैसे पढ़ते गए ना तो समझ में आया कि लॉ क्या है ना, इट इज मोर ऑफ योर लाइफ चैलेंजेस। मतलब लॉ में सब कुछ वो लिखा हुआ है जो डे टू डे इंसान को ना लाइफ में प्रॉब्लम होती है। आप रोड पे गए, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो उसको भी रेगुलेट करता है लॉ। MV एक्ट है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक। हाँ, बिकॉज सी बोलते हैं ना लॉ इज ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इंसान डे टू डे लाइफ में लगाता है ना। वो टॉट में बोलते हैं कि यू हैव अ राइट टू स्विंग योर स्वॉर्ड बट योर राइट एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स। सही बात। करेक्ट। आई स्टिल रिमेंबर दिस एग्जांपल। है ना। तो वो आप क्रिकेट मैच देखने जाते हो, अभी धोनी ने छक्का मारा और आपका सर फूट गया तो वाइकेरियस लाइबिलिटी है कि द मोमेंट यू टुक द टिकट यू वर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट एक बॉल आएगी और लग सकती है। सही बात है। तो वो टॉट में पढ़ाया गया। तो हमने मतलब सी आई थिंक इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कॉलेज आपको कैसे पढ़ाता है। इन्हें रट्टाफिकेशन नहीं सिखा रहा कि बस सेक्शंस रट लो। टॉट्स में तो सेक्शन होते भी नहीं, बट आपको जो लॉ पढ़ा रहा है वो लाइफ में किधर इंपॉर्टेंट है, हाउ इट इज रिलेवेंट टू इट एंड हाउ इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। जैसे बोलते हैं ना लॉयर्स टॉक इन अ वेरी डिफरेंट वे। हम हर चीज में ना लॉजिक करते रहते हैं। मेरी वाइफ बोलती रहती है, मैं हर आर्ग्यूमेंट हमारा होएगा ना कुछ भी तो मैंने बोला कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो बोलते हर चीज तुझे लिखा ही चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी ब्लैक एंड व्हाइट। और हम एज अ लीगल काउंसिल आल्सो वी एडवाइज। अगर मैं जूनियर भी कुछ अगर एडवाइस देता है ना, मान लो HR फंक्शन को या कुछ भी, तो मैं उसको बोलूंगा कॉल पे नहीं, इट हैज टू बी इन मीटिंग्स और टीम्स मीटिंग में बोल दिया नहीं, आफ्टर द डिस्कशन ड्रॉप अ ईमेल that this is what we have agreed and this is what we have advised. Let me tell you, this has been the most useful advice that I have received while working with you, क्योंकि ये मेरे को बहुत काम करती है। Once you are in the audit, आपने जो भी डॉक्यूमेंट किया, you have to send it to the client then and there. Yeah, human nature है on paper. अभी मैंने तेरे से एग्री करा, बाद में मेरे को लगा कि what I have agreed with you मेरे को किसी तरह से हार्म कर रहा है या it is not beneficial to me, will back out. क्या प्रूफ है? कोई किसी के पास कोई रहता है कुछ भी नहीं है ना। क्या बोला नहीं बोला, वो हम सतयुग और द्वापर युग में नहीं है कि कर्ण की वाणी नहीं है कि जो बोल दिया सो बोल दिया। उस समय तो शकुनी भी जो बोलते थे वो मानते थे लोग कि बोल दिया तो वही करेंगे। आज के डेट में तो आप अनलेस इट इज डॉक्यूमेंटेड, तो वो देखो हर चीज के लिए है। मान लो पिताजी ने विल नहीं लिखी और बोल दिया कि सारी प्रॉपर्टी मेरे भाइयों में बराबर बटेगी, पिताजी ऑफ, उसके बाद तो हो गया डिस्प्यूट। या बोले कि बड़ा भाई है यही तो बैठेगा, मनीष के साथ दिस हैज हैपेंड हर जगह यही है। तुम सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप लॉ पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आता है कि हर लॉ जो आप पढ़ रहे हो वो डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आई वुड आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस लॉ के ऊपर ही। व्हाट डू यू थिंक कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था लॉ के दौरान, आई मीन थ्रू आउट योर आई मीन लॉ कॉलेज, और वो क्यों था? तो बड़े सारे थे। हर सेमेस्टर में ना एक सब्जेक्ट मेरा फेवरेट होता था जो आपको अल्टीमेट लगता है। लाइक यू थिंक इसके बिना तो फिर ना मतलब बाकी सारे मतलब इट वाज लाइक अ वेरी फंडामेंटल। अगर पूरा 5 साल का लॉ पूछेगा तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। वाओ। बिकॉज जो अभी हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ हैं CGI, वो भी तो जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे हैं तो उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी लाइन बोली या कोट बोला कि द बेस्ट थिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट प्रोटेक्ट दोज हु डोंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। या आई रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड दैट वाज सो टचिंग। तो देखो ये बोल के मेरे को गूज़बम्स हो जाते हैं। दैट इज हाउ मच आई फील एज अ लीगल प्रोफेशनल
यू आर कनेक्टेड टू, एक चीज हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म. हाई ग्रैंड नॉर्म मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. उससे बड़ा कुछ नहीं है. भारत का संविधान से बड़ा ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, ना मुकेश अंबानी है. सही बात है, सही बात है. कोई नहीं है. एवरीवन डिराइव्स देयर अथॉरिटी या पावर या राइट्स या द नेशन, सब कुछ, द नेशन रन्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो सोल है. जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते थे ना कि आउट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सही बात है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32. यस यस. तो उसी तरह से किसी देश को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कानून में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस देश का संविधान. है ना. तो चीफ जस्टिस का क्या पावर है, राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. अदरवाइज तो क्योस है ना. सही बात. जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा, पाकिस्तान का एग्जांपल देख ले. पता नहीं नाम मात्र को है उधर. मतलब बोल रहा हूँ फॉर ऑल द मोनार्कियल कंट्रीज, मिडिल ईस्ट को छोड़ दे. पर देखो जैसे एक हमारे सर थे मनीष शर्मा, वो हमें ह्यूमन राइट्स पढ़ाते थे, इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते थे. सैड पार्ट इज उनका डिमाइस हो गया. ही वाज क्वाइट यंग, ही एंड हिज वाइफ बोथ. बट उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बोला था हमारे कॉलेज में, आई डोंट रिमेम्बर कौन से ईयर में, बट उन्होंने बोला कि democracy is not the best form of government, but it is better than any other form of government. Wow, that's also makes so much sense. So अगर आप डेमोक्रेसी में क्या है, हर किसी को बोलने की आज़ादी है. पर अगर तुम ऑफिस में देख लो या तुम क्लास में देख लो, हर किसी को बोलने के लिए दे दोगे ना तो क्योस है. करेक्ट. बट मोनार्कियल रूल से अच्छा है. पर उस समय मेरा दिमाग इतना नहीं चलता था. पर अभी अगर कभी मेरा डिस्कशन होता है किसी से या मैं पूछता, तो मेरे को लगता है ना कि इट इज नॉट डेमोक्रेसी और मोनार्की which is a better form of government. Any form of government which gives the basic benefits to its subject मतलब individuals, citizens in this case, is a good form of government. UAE में monarchical rule है, पर everyone is happy. अगर तुम UAE का population देखोगे, locals जो हैं वो less than 3% है शायद. अभी numbers change हो सकते हैं. I'm giving you just a perspective. और 97% जो population है ना वो immigrants हैं. UAE में ना expats हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हो. इकोनॉमी उनकी वजह से सर्वाइव करी. हाँ, इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, सब यूरोपियन पीपल सब काम कर रहे हैं वहाँ पे. पर फिर भी कोई chaos नहीं है. वो लेस देन 3% ऑफ पॉपुलेशन जो है और 97% पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है और लॉ एंड ऑर्डर फुल इंटैक्ट है. तो वहां पे तो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी एवरीवन इज हैप्पी. कभी सुना है कभी कोई दुबई में रहता हो बोलता हो अरे भाई सरकार बहुत खराब है, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नलके में पानी नहीं आ रहा या इस चीज की प्रॉब्लम है? नहीं. जहां आपको बेसिक एमिनिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही मिल रहा है, तो एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. I somehow I agree with that, but there are different points to it as well, which I don't want to talk about, because जैसे immigrants जो रहते हैं, laborers रहते हैं, उनके पासपोर्ट जब्त करके रख लेते हैं, फिर वो there are other issues also. एक चीज but बताओ, I would say on a general level पासपोर्ट जब्त करके रख देते हैं, पर डेमोक्रेसी तो इंडिया में है. मिनिमम वेज नहीं देते. दिहाड़ी मजदूर को 8 घंटे बोल के 15 घंटे काम करवाते हैं. तो वो बेचारे के पास क्या राइट है? प्रधानमंत्री को बोल सकता है वो. उसका बॉस वही उसका कॉन्ट्रैक्टर है, उससे पंगा करेगा. वो उसके लिए वही प्रिंसिपल है कि जल में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते. उसको बोलेगा ना अरे कानून बोलता 8 घंटे काम 15 घंटे कैसे करवा रहे हो, मुझे ओवर टाइम चाहिए. वो बोलेगा कल से मत आना. तो हर चीज का ठीक है. वी बीइंग लॉयर्स हमें ज्यादा लॉ मालूम है, बट तुम तब भी हम हर जगह ना अपना लॉ इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते. बिल्कुल करेक्ट. तो आम आदमी जो है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, गरीब तबके का इंसान है, इसको कुछ नहीं आता है, उसके लिए तो भैया बस उसके पेट में अन्न चला जाए, बस उतना ही है. वो हर जगह लड़ नहीं सकता है, वरना घर में बीवी बच्चे क्या खाएंगे. सही बात है. तो वो चीज होती है. तो ठीक है, मतलब दैट इज, मतलब हम बहुत चले गए इधर, पर पॉइंट है कि लॉ ना आपको वो चीज समझाता है कि जो आप पढ़ रहे हो उसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट क्या है. जब हम कंप्लायंसेस
जब इंडस्ट्री में है ना कंप्लायंस करते थे तो हम हर जगह देखते थे, अरे ये लाइसेंस का रिक्वायरमेंट इधर देखो, ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा है कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वो सही है या नहीं। तो हर चीज़ को जैसे आप अपने डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो आप ज़्यादा समझोगे। रटना तो यार आप रट लिया तो आप ना 6 महीने साल भर बाद वो भूल ही जाओगे, पर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इट अगर आपको समझ में है, मे बी आपको सेक्शंस याद नहीं होंगे बट आपको फंडामेंटल्स समझ में आएंगे। और ये आई थिंक लॉ नहीं, आई थिंक हर प्रोफेशन में यही होगा कि आपको फंडामेंटल्स पता है अगर तो आप मैनेज तो यू विल डू गुड, यू विल डू गुड, यू विल इवन कम ऑन टॉप ऑफ चैट जीपीटी को भी आप झेल लोगे इन योर करियर, आई वुड से, एज लॉन्ग एज यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर फंडामेंटल्स। करेक्ट। सी देखो टेक्नोलॉजी इज वेरी एसेंशियल एट द सेम टाइम आपको खुद को भी यू नो टेक्नोलॉजी के साथ साथ रन करना पड़ता है, वरना फिर आप आउटडेटेड हो जाओगे। एब्सोल्युटली, आई टोटली। हमारे जो सीनियर लॉयर्स पहले होते थे उन सबके पास ना AIR SEC जर्नल्स वो पूरी यू नो तो आई थिंक दैट हैज बिकम वॉल redundant now, sir. भर के रखे होते थे। डू यू रियली थिंक आप कोई कर सब्सक्राइब भी करता होगा इन सब तो से, एक्सेप्ट हमारे बेस्ट लॉ और यही सब द करंट CGI हैज आई थिंक मेंशन्ड दैट SEC ऑनलाइन इज फ्री नाउ, सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती आई थिंक। Oh right, that is free. They have made it mandatorily. करेक्ट। तो जो पहले इतने सारे आपको सब्सक्रिप्शन जजमेंट्स के लिए SEC जाके सुप्रीम कोर्ट में लॉयर का लॉगिन और वो सब करके आपको करना पड़ता था, एंड पीपल हु हैड सब्सक्राइब टू इट, सारे जजमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल है। अब तो टेक्नोलॉजी अगर आप नाउ सी बीइंग अ कॉर्पोरेट, अभी तो हम PPT से पावर BI की तरफ चले गए हैं, तो टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो ही रही है। अभी क्लाइंट बोलता है कि आपकी रिपोर्ट पावर BI में आनी चाहिए हमारे पास। अगर एज अ लॉयर एज अ प्रोफेशनल आई डोंट नो, अगर आपको पावर BI अभी नहीं आता तो आप रिपोर्ट कैसे बनाओगे? यू से अरे मैं तो लॉयर हूँ, मुझे पावर BI क्यों जानना है? नहीं, उसमें वही है ना, अलग अलग डैशबोर्ड्स बन जाते हैं वंस यू फीड इन द टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी अभी नहीं पता, पर दिस इज समथिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट नाउ व्हेन वी गो एंड यू नो इंटरेक्ट विद क्लाइंट्स, द एक्सपेक्टेशन इज कि आप पावर BI में क्यों नहीं यू नो रिपोर्ट देते हो हमें, ज़्यादा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जैसे तूने मैंने काम करा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में हमें बोला जाता है कि विजुअल में पूरा फ्लो डायग्राम होना चाहिए, तो तू मैनुअली बैक बॉक्स बनाना बैठ जा, 3 दिन लगेंगे तुझे। सही बात है। तो अगर विजुअल आता है तो इट्स अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर। तो फॉर एनी पर्सन और बी पार्ट ऑफ एनी प्रोफेशन, टेक्नोलॉजी के साथ तो आपको साथ में बोलते हैं ना कदम से कदम मिला के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ब्लैकबेरीज और नोकियाज हो जाओगे। सही है। बिकॉज अगर जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट यू नो मॉडिफिकेशंस वी हैव टू डू। लॉ में भी तो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं ना, समय के साथ अगर आपने कानून नहीं बदला तो वो रिडंडेंट हो जाता है। सही बात है। तो अमेंडमेंट्स आर कमिंग। हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन देख ले, कितने अमेंडमेंट्स हैं? आई थिंक 110 प्लस तो ही। हाँ 110 प्लस तो अभी हो गए। हाँ, क्योंकि I forgot then, but it is 110 plus. जब मैं लॉ स्कूल में एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था ना, तब ये भी क्वेश्चंस होते थे, तो उस समय 96 97 थे। अभी तो I'm sure 110 प्लस होंगे अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सर मेरे को एक चीज और पूछना है, जैसे मान लो अब नाउ सिंस दैट यू आर मेंशनिंग ऑल ऑफ दिस, नाउ सिंस यू आर मेंशनिंग अबाउट कॉलेज लाइफ एटसेट्रा, सो हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट जॉब आफ्टर कॉलेज? देखिए ये तो एक ना बहुत बड़ा, जैसे मेरे केस में क्या था, आई थी PwC एंड देन वी गॉट प्लेस्ड एंड वी वर लकी इनफ। लकी लोग होते हैं जिनको कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है। हाँ, और हर कॉलेज जो है ना वो ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाती है कि हमारे यहाँ तो 100% कैंपस प्लेसमेंट है। ये वो कितनी कंपनीज देती है, मतलब कॉलेजेस देती है, अब तो IIT भी नहीं देती 100% कैंपस। नहीं मिलता है यार, IIT में तो मिल जाता है। 100% किसको मिलता है? अभी तो मैं आई डोंट थिंक कि, अब मेरे को नहीं मालूम, शायद 100% ना मिलता हो। IIT के नाम पे मिल जाता है। इट्स maybe people don't take it, so that's why that सारे के सारे 100% कैंपस हो जाते हैं। अब सब कोई ड्रॉप आउट है, फेल है तो बात अलग है। नहीं मतलब ठीक है, मतलब होता होगा, पर एटलीस्ट मेरे कॉलेज में तो नहीं हुआ 100%, क्या 25% भी कैंपस नहीं हुआ। 20-35 ऐसा कुछ था। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अनलेस आप बैंगलोर में बैठे हो तो भैया आपको सारी टॉप टियर लॉ फर्म्स, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, कुछ जॉब छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, 4 जगह आप इंटरव्यू देते तो उसमें 3 में हो जाता है, और फिर लोग चूज करते हैं बेस्ट। हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं था। एक LPO थी, वो कैंपस करने आई थी और आधे से ज्यादा जनता ने उसमें ही अप्लाई कर दिया। समहाउ मेरा इंक्लिनेशन नहीं था LPO में काम करने का, तो हमारे में क्या होता था कि लास्ट सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर
लास्ट ईयर का फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आप एक सेमेस्टर चूज कर सकते हो जिसमें आप इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाओगे। 6 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। और हम लोगों को नहीं था सर। हाँ, तो वो इसलिए भी था कि आप इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहे हो। गुड थिंग एक्चुअली। और उसमें आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती थी। मैंने मर्जर्स एंड एक्विजिशन पे एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन बनाई थी। हाँ, और एक मेंटर होता था हर शहर में, और वहाँ पे आप जाओ, वो रिपोर्ट सबमिट करो, वो आपसे क्वेश्चंस Q&A करते थे, वाइवा होता था, उसके बेसिस पे ग्रेड्स मिलते थे। सो आई केम टू दिल्ली फॉर दैट। और मैंने एक सीनियर काउंसिल थे सुप्रीम कोर्ट में, स्टैंडिंग काउंसिल थे फॉर सम ऑफ द स्टेट्स, उनके यहाँ इंटर्नशिप करी 1 महीने 2 महीने काम करा। समझ में आया कि यहाँ पे तो 5-6 हज़ार रुपये भी मिलना मुश्किल है। अगर जॉब मिलेगी तो सैड रियलिटी एक्चुअली है, लिटिगेशन में है। आप अगर जो बेस्ट चेम्बर्स इन सुप्रीम कोर्ट अभी आप देखो तो सर ये पर मंथ का नंबर बता रहे हो आप? हाँ, 5-6 हज़ार रुपये उस समय मिलता था। अब अच्छे 10-15 मे बी 20-25 भी मिलता हो, पर हमारे समय तो यही था। तो लगा कि भाई पिताजी ने बड़े पैसे खर्च करे, इसमें तो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में भी गुजारा नहीं होगा। तो फिर एक लॉ फर्म में काम करा, एस जलान में। तो आपने 2 महीने के बाद चेंज कर दी क्योंकि 6 महीने की रही? हाँ, 2 महीने उधर काम करा, फिर 2 महीने एस जलान में काम करा। वहाँ स्टाइपेंड दिया उन्होंने 3-3.5 हज़ार रुपये, और बोला कि हमारे पास तो भी फ्रेशर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो वही है, मतलब 2 महीने इंटर्नशिप करा, और उसके बाद फिर डेफकॉल में लॉ फर्म में वहाँ गया कि पहले भी काम कर रखा है 4th ईयर में, तो एटलीस्ट वहाँ पे काम मिल जाएगा। 2 महीने काम करने के बाद पता चला कि लॉ फर्म जिसमें मैं काम कर रहा था वो खुद ही स्प्लिट हो गई, और वहाँ पे सैलरी भी कुछ दे रहे थे, बोल रहे थे 8-9 हज़ार रुपये। तो मैं और भी जगह इंटरव्यूज़ दे रहा था। एक फ्रेंड थी मेरी, उसने बोला कि यहाँ पे भी एक सीनियर काउंसिल है, उसके यहाँ वो इंटर्नशिप कर रही थी। तो मैं ना अप्रैल में ही चला गया था वो इंटरव्यू देने के लिए। तो उनको पता नहीं, शायद मुझे लगा कि हाँ ठीक ठाक बंदा है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि you'll pay 11,000 रुपीज़ और स्टार्ट वर्किंग। तो मैं कोर्ट्स में जाता था उनके साथ, पास ओवर लेने के लिए, डेट्स लेने के लिए, एडजॉर्नमेंट्स लेने के लिए, या फिर कंज्यूमर फोरम में छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में थोड़े बहुत मैटर्स शोकाज नोटिस इशू करवाने के लिए, या फिर और ड्राफ्टिंग करता रहता था। तभी जब ग्रेजुएट हुआ तब मुझे 15,000 रुपये कुछ मिलते थे लॉ फर्म में, और एक्सपेंस मिलता था। लॉ फर्म मतलब वो एक तरह छोटा मोटा लॉ फर्म था, लिटिगेटिंग लॉ फर्म था। 2-3 एसोसिएट्स थे, एक मुंशी था, एक ऑफिस बॉय था, सर काम करते थे बस। तो वो भी साउथ एक्स में था, बेसमेंट में ऑफिस था उनका, तो वहाँ पे काम करते थे। तो वहाँ पे मतलब मोस्टली 138 के मैटर्स होते थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। तो दिल्ली में जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स स्कैटर्ड हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, द्वारका, रोहिणी, तीसहजारी, करकरडुमा, साकेत, सब अलग और दूर दूर है, सब एक दूसरे से। अब पटियाला हाउस, सब मिला के 6 ऐसे। और तो सारे और जुरिसडिक्शन के हिसाब से सारे 138 मैटर्स लगे भी होते हैं हर जगह अलग अलग। तो मैं वो जंगपुरा में रहता था अपने भाई के साथ, और वो बैकपैक में अपने सारे फाइल्स लेके जाता। तो एक दिन में 8-8, 10-10 फाइल्स बैग में डाले, 4-4-5 फाइल हाथ में लिया, और मेट्रो स्टेशन से कभी द्वारका जा रहे हैं। मोटी होती होंगी सारे नहीं, मतलब कभी मान लो कि कोई आर्बिट्रेशन लगा हुआ हाई कोर्ट में, और वो सेकंड हाफ में है, और उससे पहले मुझे साकेत में 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मैटर्स भी करवाने हैं। तो 4 फाइल इधर रखे, 4 फाइल उधर रखे, या एक झोला रखा उसमें फाइल लिए वो कोर्ट में। और दिल्ली के ट्रैफिक मेट्रो में जो भीड़ होती है उसमें धक्के खाते खिलाते अपना इधर से उधर दौड़ रहे हैं। वो एक्सपीरियंस था। पैसे कम मिलते थे, बट एक जो बोलते थे रियल चार्म ऑफ द प्रोफेशन। तो यही आपका पहला जॉब था? हाँ, 11,000 रुपये पहले मिले, फिर 15,000 रुपये मिलते थे, फिर सारे एक्सपेंस देते थे। या अगर मान लो ऑटो से गए, या फिर कभी कैब है, उस समय ओला उबर का कॉन्सेप्ट नहीं था आई थिंक, या तीसरी में मुझे नॉलेज नहीं थी। तो ऑटो से जाते थे या बस पकड़ के जाते थे। जो नॉन एसी बस होती है उसमें 5 रुपये लगते थे, एसी बस में 10 रुपये लगते थे। और वो पटियाला हाउस से बस पकड़ा तो साउथ एक्स चले गए, या फिर साउथ एक्स से 787 पकड़ा तो उसके बाद फिर वो करकरडुमा तक भी बस जाती थी। तो बहुत सारे नंबर थे, मुझे याद नहीं है अब, बट बस से ही ट्रैवल करते थे, बिकॉज अगर बहुत वो है और मेट्रो में बहुत भीड़ है। कब तक चला सर? 8-9 महीने काम करा मैंने। आई स्टार्टेड वर्किंग
And this were purely litigation हाँ, हार्डकोर लिटिगेशन। तो कोर्ट्स जाते थे और कोर्ट से वापस आकर फिर लंच वंच खाकर फिर बैठे सारी ड्राफ्टिंग करने के लिए, रिसर्च वर्क करने के लिए। सेम टाइम पे हुआ था? हाँ, वी ग्रेजुएटेड इन द सेम ईयर, सो आई ड्रॉप्ड अ ईयर आफ्टर माय 12th बिकॉज मेरे पहले टाइम में ना एनएलएस में 120 नंबर आ गए थे। तो मैं बड़ा खुश था कि मैं तो नेशनल्स ही निकालूंगा, एनएलएसआईयू बैंगलोर जाऊंगा मैं। अच्छा, तो वो मुझे ना एक वो हो गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं निकल मेरा गया था 2006 में भी इक्फाई और चाणक्य नेशनल लॉ, लेकिन मैंने दोनों ही चूज नहीं करा। अभी लगता है कर ही लेता, एक साल जल्दी पास आउट हो जाता, बट आई थॉट कि नहीं, थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा तैयारी करूंगा तो मेरा नेशनल्स निकल जाएगा। और मेरा भाई मेरे से एकेडमिकली एक साल छोटा है, तो वो रनिंग ईयर में ही उसने भी दिया, तो उसका सिर्फ इक्फाई में हुआ था, जिससे मैंने दिया था। तो मेरा इक्फाई, क्योंकि वो पढ़ता नहीं था ना, उसने वो पता है मेरे मटेरियल्स पढ़ता था। तो मैं एलएसटी में मैंने क्रैश कोर्स करा था, तो उसमें एक महीने में ना आपको एक स्टडी मटेरियल देते हैं और एक महीने का कोर्स होता है, उसमें फैकल्टीज आते हैं। तो आई शुड से दिस, अगर मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरा लॉ में इंटरेस्ट जागा नॉट बिकॉज माई फादर वॉज अ लॉयर, इज अ लॉयर, because I met Mr. Sachin Mallan. Who is he? Sachin Mallan is one person who started LST, Law School Tutorials. अच्छा। And LST और इसने करियर लॉन्चर को बेच दिया। I know that story. But Sachin Mallan is a NLSIU graduate. Okay, and उन्होंने फिर रेनमेकर में भी काम करा और भी बहुत सारी कंपनीज बनाई, अभी भी वो कुछ कर रहे हैं। Rainmaker is also. हाँ, I think he was associated with it. Wow, I didn't know his name, तो but he's a big entrepreneur. एक ना सेवियर्स कॉलेज में रांची में एक वर्कशॉप होने वाला था। तो मैं ना, मेरी एक फ्रेंड एलएसटी में कुछ कर रही थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। एक यूनिवर्सल का गाइड मटेरियल आता था, मेरे फादर ने लाके मुझे दे दिया था कि यही पढ़, इससे तैयार प्रिपरेशन कर, अगर तू ड्रॉप ही कर रहा है तो ऐसे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि कोई जाती है वहाँ पर करियर लॉन्चर में। तो मैं भी गया वहाँ पर बात करने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये तो बैच निकल गया, तो आप क्रैश कोर्स में अप्रैल में ले सकते हो, 1 महीने में पढ़ाएंगे और मई से सारे एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो मैं चला गया वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि एक वर्कशॉप हो रहा है, सचिन मलान हु इज द ओनर ऑफ एलएसटी, वो वर्कशॉप दे रहे हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो आप भी चले जाओ ये सुनना। वहाँ पर मैं गया तो वो मैकबुक लेके एक बंदा छोटा सा लैपटॉप बैग लेके आया और प्रेजेंटेशन दे रहा है, एंड द वे ही वाज स्पीकिंग, आई वुड से फर्स्ट टाइम आई सॉ an orator. How does a lawyer speak? वो चीज मुझे उस दिन मतलब समझ में आया कि I can also be someone like him, or I can at least speak like him. उनके जैसा तो बनना पता नहीं। तो वो मुझे थोड़ा सा किक हुआ। अदरवाइज हमारी तरफ क्या बोलते हैं, और आई थिंक पूरे एटलीस्ट इंडिया में तो मालूम नहीं मेरे को, पर बिहार में तो बोलते वकील मतलब क्या, काला कोट। मतलब द impression of a lawyer in the eastern part of the country at least is, or in small cities is, और तुम सारे मूवीज में भी दिखाएंगे वही ना कि छतरी लेकर के वो साइकिल पे चलता बंदा और एक टाइपराइटर पे बैठ के काला कोट वो करता है। इतनी गंदी पिक्चर है भाई, मतलब तू कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हटा दे, on some the creamy layer of lawyers in the litigation profession, पर नीचे वैसे लोग हैं। तू अगर गुड़गांव कोर्ट में जाएगा तो, या फिर तू लोअर कोर्ट्स में जाएगा तो तुझे वैसे दिखेंगे। नोएडा के लोअर कोर्ट्स में जा, तू लोग फाइल से जनाब 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 हमारा ये हमारा मैटर 100 आइटम नंबर ये वो मुंशी भी नहीं बोलने देते उसको, मतलब जो कोर्ट रीडर होता है कोर्ट में उसको भी नहीं बोलने देते। मजिस्ट्रेट के सामने वो अपना फाइल ऐसे ऐसे ऐसे। एक बार देहरादून में मैं लॉ स्कूल में ही था, मेरा बाइक का चालान कट गया था, तो वो बाइक उन्होंने सीज कर दी। उसमें मैं गया बोलने के लिए कि मुझे मतलब ऑब्वियसली चालान भरना था कोर्ट में। तो मैंने खुद लॉ स्टूडेंट होकर मैंने एक वकील करा, बोला सर आप हेल्प कर दो, मुझे नहीं पता प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है। तो मैं बोला तुम बाहर खड़े रहो, और वो एमएम थे, मेट्रोपॉलिटन नहीं एमएम नहीं होता वहाँ तो, आई थिंक कुछ और मजिस्ट्रेट होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थी। और वो ऐसे सारे वकील फाइल लेके मैडम 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 मैडम, और मैडम का मन कर रहा तो ये फाइल उठा ली, आइटम नंबर कुछ नहीं होता है कोई केस नंबर, बस जो फाइल ले लिया और आइटम बोल दिया वो मैटर। इट हैज बीन डिजिटाइज्ड बाय द। हाँ, अभी देखो बहुत अच्छा कंडीशन। जैसे मेरे डैड रांची हाई कोर्ट में थे, तो वहाँ पर
जब मैटर लगता है ना तो महीने दिन बाद डेट्स आती है और आपकी लिस्ट हर महीने आपको ना हर दिन या महीने का लिस्ट आपके घर पे डिलीवर होता है, उसमें आपको दिखता है कि आपका आइटम नंबर क्या है। और वो आइटम नंबर का जज ने मान लो आइटम नंबर 67 है तुम्हारा और जज आज सुन रहा है तो वो 20-25 मैटर सुने, उसने आज का डेट निकल गया तो कल की तो दूसरी लिस्ट बनी हुई है, वो गया। अभी नेक्स्ट डेट जब नेक्स्ट मंडे आएगा या किस डेट पे वो लगेगा मैटर। दिल्ली में तो फिर भी अच्छा है, आपने अगर फाइल करा और आपका ऑब्जेक्शन नहीं आया फाइलिंग में कि हाँ सब आपने डॉक्यूमेंट सही से कर रखे हैं और सही साइड में आपने ओरिजिनल साइड में फाइल करा है, अपलेट साइड में फाइल करा है, सही सारे डॉक्यूमेंटेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो आपका मैटर दूसरे दिन या तीसरे दिन हाई कोर्ट में लग जाता है। पर लोअर कोर्ट्स में ऐसा हालत नहीं। सी द रीजन व्हाई देयर सो मच ऑफ पेंडेंसी इज बिकॉज द प्रोसीजर जो फॉलो होता है वो भी एक रीजन है। मैं पूछना चाहूंगा अलॉन्ग विद जैसे यू मेंशन्ड सचिन मलान, तो व्हाट डू यू मतलब इन योर प्रोफेशनल जर्नी स्पेशली इन योर करियर लाइक after doing that litigation etc, whom do you consider as a mentor? जैसे I consider जैसे during starting of my career like you have been a big time mentor for me, the way you have explained how to do compliances, I mean how to check compliances, audit कैसे करते हैं, there were certain basic things, I mean the way you mentioned while we were discussing right now कि document करो हर चीज़, everything has to be in written, so I mean that way आपको क्या लगता है कि आप मतलब who were the mentors and what was something that you learned was so much valuable that actually was very helpful throughout your career? Professionally ना on a personal level I can say हर स्टेज पे ना अलग अलग mentors होते हैं। litigation days का अगर बोलूँगा तो जो मेरे सर थे, he has a very unique accent. He never went abroad for studies, but the way he used to argue in the court of law, the clarity of his speech and the accent, तो वो बहुत यूनिक था। आई विल नॉट से कि मैंने कुछ सीखा उससे एक एक्सेंट रखने के लिए, बट व्हाट आई अंडरस्टूड इज प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वे यू ड्रेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब आप मे बी सी विच इज वेरी ट्रू कि आपका जो व्हाट वी से फैक्ट्स जो है, आपका रिसर्च जो है, दैट्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड, बट presentation is also very important. A lawyer जिसका बैंड ऐसा क्रश्ड है, जिसका कोट शाइनी नहीं है and is not very well dressed in a court of law compared to that counsel who is reasonably okay but he is a good orator. See, that is also a fact. Knowledge of law and being a good orator are two different things. Maybe you do not have strong points to argue, or your research is not that great, but if you're a good orator, the judge falls in love with you. Oh wow, क्या बोल रहा है? बोलेगा नहीं obviously, but the way you are presenting your case, your lordship, the way he presents his case, तो वो एक impression देता है। आपके पास not always you will have a strong case, not always you will have evidences in your favor, not always law will be favoring you. आपको पता है कि इसमें कुछ नहीं है जीतने के लिए, but still the charm of that as an orator, the charm you have or the impression which you give to the judge, sometimes it acts in your favor. वो होता है, और वो हर जगह होता है कि आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, कंटेंट नहीं है, पर आपका प्रेजेंटेशन पीपीटी बहुत सुंदर है, तो वो सेल ऑफ कर जाता है। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी कि एक एज अ लीगल प्रोफेशनल, जैसे बोलते ना कि डॉक्टर्स ऑलवेज हैव टू बी क्लीन शेव्ड, वेल ड्रेस्ड, आपको अपना एक डेकोरम मेंटेन करना था। फॉर लॉयर्स ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड। अभी जैसे नहीं, अभी तो हम जैसे घूम रहे हैं ना, ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने हमें ग्रूमिंग ही हमारी खराब कर रखी है, बट properly dress up होना is very important. What about after litigation फिर आप कौन से फॉर्म में थे? तो देखो litigation में मैंने 9-10 महीने काम करे और मुझे समझ में आया कि though the real charm of the profession is in litigating in the court of law, pleading in front of the judge. एक बार मुझे मौका मिला था हाई कोर्ट में भी जज के सामने आर्ग्यू करने के लिए एक मैटर, तो वहाँ बड़े बड़े सीनियर काउंसिल्स आए हुए थे और एक में छोटा सा, मैं भी कुछ
अपने रेस्पॉन्डेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 थे, तो उसमें से मैं भी एक रेस्पॉन्डेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो कुछ मैंने भी बोला, बड़ा अच्छा लग रहा था। गाउन वाउन पहन के हाई कोर्ट जाते थे आर्ग्यू करने के लिए। लो कोर्ट्स में गाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप नॉर्मल कोर्ट बैंड में भी रहते हो तो चलता है। बट पैसे नहीं मिल रहे थे, अब दिल्ली में सर्वाइव करना है। और जब आपके फ्रेंड्स आईफोन खरीदने लगते हैं, उस समय ब्लैकबेरी का जमाना होता था, तो ब्लैकबेरी BBM लोग करते थे, और मेरे पास वो ना टाटा इंडिकॉम होता था, CDMA। तब क्या पर सेकंड का चार्ज करता था, 1 पैसा पर सेकंड समथिंग लाइक। पर वो भी सस्ता था ना, CDMA फोटो। हाँ, टाटा इंडिकॉम का होता था। डोकोमो मेरे पास टाटा इंडिकॉम हायर का सेट होता था, आई थिंक, ये पता नहीं किसी का। और वो टाटा इंडिकॉम का CDMA कनेक्शन होता था। तो लगा कि नहीं यार, थोड़े पैसे भी चाहिए, चाम वाम तो सब ठीक है, बट अभी आपको थोड़े से तो एक वही मतलब, सी मोस्ट ऑफ माय जॉब्स आई वुड से मुझे ना रेफरेंस के थ्रू, फ्रेंड्स कोलीग्स ने, किसी ने बता दिया, रेफर कर दिया, उसके थ्रू ही मिले। तो कोई जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए, कंसल्टिंग फर्म थी, चेस मैनेजमेंट है अभी भी। ये कंपनी वाज इनिशिएटेड बाय मिस्टर कार्ति पी चिदम्बरम, son of Mr. P. Chidambaram. Abhi to he's not very famous for good things, but and chess was one institution which was started in 2000, and they were the ones who first brought compliance as a subject in industry. They started selling compliance as a product to industries कि compliance करो, बहुत important है ये सारी चीज़ें। So मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, and I would say that was my second mentor, the CEO of the organization, Jayashree Swaminathan. तो उन्होंने बड़े सारे वो ना, मेरे को ना वो बहुत मदरली टाइप लगती थी, बहुत ज्ञान देते रहती थी कि देखो, अगर एक सुट्टा नहीं पियोगे तो 10 रुपये बचाओगे, तो उस हिसाब से जोड़ो कि महीने के कितने पैसे बचे, तो साल के कितने पैसे बचे, तो 25 साल में तो तुम घर खरीद सकते हो। सो फॉर समवन जिसने अभी करियर शुरू करा है, 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है जो आपको बताने के लिए। कि एक चीज़ बड़ी अच्छी उन्होंने बोली थी, और ये मैं आज तक सबको बोलता हूँ, शायद तुझे भी बोला होगा, और मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, कि अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना है तो ईगो को अपने घर में लॉकर में ताला लगा के आया करो ऑफिस। बिकॉज अगर आप ईगो में रहोगे ना, तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सीनियर है, कभी वो आपको प्यार से समझाएगा, कभी डांट के भी समझाएगा। अगर उसने डांट दिया, क्यों मुझे ये ईगो लेके बैठ गए, यू विल नेवर ग्रो इन लाइफ एज अ प्रोफेशनल। ये ईगो से मेरे को ना एक क्वेश्चन आया, मतलब एंड दिस समथिंग कुड बी लाइक, हाउ डू यू, अब जैसे ऐसा कुछ हुआ है जैसे लाइक वेयर यू फेल्ट लाइक कि यार ये मेरे लिए सही नहीं, मैंने जो काम किया वो सही नहीं था, फेलियर था इट इन अ वे, एंड देन हाउ डिड यू एक्चुअली कोप अप विद इट, मतलब फिर हाउ डिड यू मैनेज दैट, वो मतलब जो दैट फीलिंग ऑफ फेलियर, लाइक यू नो कभी कभी हो जाता है गलत। हाँ, मतलब फेलियर ऑफ डिलीवरेबल या फेलियर ऑफ डिसीजन, जो भी कह लो यार, मतलब मैं वो मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब तो कैसे हैंडल करोगे यार अब, बिकॉज समटाइम्स क्या रहता है, अब जैसे मैं नए PwC में, देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट हैपेंस इन योर, आई मीन लाइक यू नो यू सेंड द रॉन्ग डिलीवरेबल, और प्रॉब्ली मतलब डिलीवरेबल वाज नॉट अप टू दैट क्वालिटी। तेरे डिलीवरेबल्स के मार मैंने झेली है। हाँ, तो वो ठीक है सर, वो सब ठीक है, नहीं वो तो होता ही है। अब बट आई एम सेइंग दैट कि ऐसे में, अब देखो मैं तो आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज माय फर्स्ट प्रोफेशन, आई मीन राइट आफ्टर द कॉलेज, तो नॉट टेकिंग द आई मीन लेवरेज बिकॉज ऑफ बीइंग अ न्यूबी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे में हाउ टू टैकल इट, एंड हाउ हैव यू टैकल्ड दैट सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कुछ हो तो वो बताओ आप। बताता हूँ, जो मैं ना देख, और ये ना इनिशियल करियर में नहीं आता है, हर समय हर जगह कभी तूने गलत कुछ कर दिया एंड यू रिग्रेट, शिट नहीं करना चाहिए था, कोई डिसीजन ले लिया लाइफ में जो आगे चल के रिग्रेट होता है कि अरे नहीं यार, ये कंपनी ज्वाइन करनी थी, या इस फील्ड में मैंने ये इसमें टैक्स में क्यों चला घुस गया, या ये तो गलत ही हो गया मेरे साथ, या फिर शिट ये वो गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर ही देना था यार, छूट गई, अभी गलत हो गया। तो देयर इज ऑलवेज बी डिसीजंस वेयर यू might feel that, you know, this was not a right decision, and you regret about taking that decision in life. But one thing which I was seeing a video where Tom Hanks and a lot of other Hollywood actors were sitting, and Tom Hanks and Leonardo was also there, and a few other actors, and Tom Hanks said that one thing which he has learned in life is this too shall pass. Wow. And he said, you're not happy, this too shall pass. You're very happy,
this too shall pass. Not doing well, this too shall pass. So wherever you are, because of any decision you have taken in life, there's always an option to correct that or take another decision to rectify it to the extent possible. कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है. किसी बुरे फेज से जा रहे हो लाइफ में, चाहे वो तुम्हारा रिपोर्ट चला गया तो 2 दिन दुखी हो गए, गलत कंपनी ज्वाइन कर ली तो 6 महीने साल भर. सही बात है, जब तक है ना. पर वो बोलते हैं कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है. नथिंग इज कांस्टेंट बट चेंज. चेंज इज नॉट ओनली in you know change in the circumstances of an individual is also there. बोलते हैं कि रात हमेशा रात नहीं रह सकती और दिन हमेशा दिन नहीं रह सकता. तो हर रात के बाद एक सवेरा होगा और हर सवेरे के बाद तैयार रहो कि रात भी आएगी. सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. सो वो बोलते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ चलते रहता है. दैट इज व्हाट द ECG आल्सो गिव्स यू. वेवलेंथ्स, अप्स एंड डाउन्स. तो जब तक जिंदा है यही है. सही बात है. जब मर गया तो स्ट्रेट लाइन. ऑक्सीलेशंस विल बी देयर. सो वो स्ट्रेट लाइन तभी आता है कांस्टेंट व्हेन यू आर नॉट अलाइव. तो जब तक लाइफ है, प्रोफेशनल, पर्सनल, हर कैपेसिटी में कुछ अच्छे डिसीजंस होंगे, कुछ गलत डिसीजंस होंगे. मैं 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कुछ डिसीजंस रिग्रेट करता हूँ. कुछ कर रहा हूँ, कुछ पहले के हैं. तू अभी 5-6 साल के एक्सपीरियंस पे है, तू वो भी रिग्रेट करेगा. कोई 25-30 साल के एक्सपीरियंस पे बैठा है, शायद वो भी कुछ डिसीजंस पे रिग्रेट करे. तो वो विजडम जो है ना, वो समय के साथ आता है. और जरूरी नहीं है कि विजडम आ जाए फिर भी इंसान गलतियां करता है. अब ऐसा तो नहीं मुकेश अंबानी बैठे हैं करोड़ ऑफ रुपीस पे तो कोई बिजनेस डिसीजन उनका गलत नहीं जा सकता. अभी धोनी ने इतना कुछ अचीव कर लिया पर 97% 95% DRS सही होता है उसका. 5% तो उनका भी गलत हो सकता है. ये पिछले वाले मैच में तो फर्स्ट बैटिंग करने का डिसीजन गलत ही हो गया ना. सही बात, हार गए बेचारे. तो नेक्स्ट मतलब सेकेंड इनिंग्स में तो ड्यू भी नहीं आई और बॉल टर्न करना भी नहीं किया, तभी तो कोलकाता आसानी से जीत गया. मारा फिर उन्होंने. तो ये हर किसी के साथ होता है. तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है. अभी मुझे लगता है कि लिटिगेशन छोड़ के मैंने कंसल्टिंग में चला गया. मैं अच्छा डिसीजन था. एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग विच आई एंजॉय, आई लव. पैशन फॉर लॉ इज ऑलवेज देयर, चाहे किसी फील्ड में जाए. बट जैसा भी मैं लेबर एम्प्लॉयमेंट देखता हूँ, तो लेबर एम्प्लॉयमेंट तो तू और भी मान ले कि मेरे हिसाब से पर्सनली आई फील इट इज सबसे इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग. बिकॉज पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है? ह्यूमंस, वर्कफोर्स, मैन पावर इज मोस्ट क्रिटिकल, इंटीग्रल एंड कॉम्प्लेक्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. कितना भी तू चैट GPT ले आ, AI ले आ, but individuals, homo sapiens are important. Absolutely, 100%. Correct. And currently तू देखे अभी ट्रेंड और चेंज हो रहा है. And managing these homo sapiens or managing the HR, employee relations is very critical for any organization. अगर तेरे एम्प्लॉयज खुश नहीं है ना, तो नो मैटर हाउ गुड टेक्नोलॉजी यू हैव इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कितने भी टूल्स और प्लेटफॉर्म्स तू ले आ, योर ऑर्गेनाइजेशन, योर डिपार्टमेंट विल नॉट थ्राइव अनलेस यू हैव satisfied employees working. Absolutely, absolutely. और वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए. तो वो तो अपन बहुत टेक्निकल में चले जाएंगे, उसको नहीं डिस्कस करते. बिकॉज एज अ एम्प्लॉयमेंट काउंसिल आई फेस दिस डे इन डे आउट. कंपनी की जो पॉलिसीज होती हैं, जिस तरह से आप एम्प्लॉयज के ग्रीवेंसेस हैंडल करते हो, जिस तरह से आप एम्प्लॉयज के कंसर्न्स हैंडल करते हो, डिस्प्यूट्स हैंडल करते हो, आप पॉलिसी किस तरह से बनाते हो, अगर एम्प्लॉय वेलबींग आपके दिमाग में नहीं है, योर ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट अचीव दैट लेवल ऑफ सक्सेस which you anticipate or anyone anticipates. अगर आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, विप्रो बनना है तो ठीक है. सी अगर तेरे पास 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, तुझे हमेशा 10,000 एम्प्लॉय से मिलेंगे जो कंपनी से खुश नहीं है ना. बट एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बिकॉज व्हेन वी इंटरैक्ट, जब हम बात करते हैं CHRO से, और वी अंडरस्टैंड दैट दे वैल्यू कि भाई एम्प्लॉय सबसे इंपॉर्टेंट है.
एम्प्लॉइज के वेलबींग के बारे में करंट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा, बिकॉज इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेंड ऑफ जैसे कि एआई आ रहा है, चैट जीपीटी है, बार्ड है, और ये आई मीन देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट इन क्या कहते हैं यूसेज ऑफ एआई, जिसकी वजह से आई मीन रिसेंटली कल ही का आर्टिकल था जिसमें बोला जीरोदा बोला जो निखिल कामत बोल रहा था कि 20% वर्क हमारा ऐसा है जो टोटली ऑटोमेट हो सकता है, 20% वर्क फोर्स का जो टोटली ऑटोमेट हो सकता है थ्रू चैट जीपीटी, और उन्होंने एक एनालिसिस करके देखा बिकॉज दे हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग ऑन द ट्रेंड, और इसकी वजह से अभी IBM ऑल्सो सेट दे आर गोइंग टू रिमूव 7,000 जॉब्स, आई मीन नॉट रिमूव बट बेसिकली जो हायर करने वाले दे विल नॉट हायर बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ चैट जीपीटी है। तो अब आप इन द करंट कॉन्टेक्स्ट सिंस यू इंटरेक्ट विद CHRO या जो भी आपके मतलब यू नो विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गिवन योर एक्सपोजर, लॉयर्स के ऊपर इसका किस तरीके से चेंज होने वाला है? आई मीन आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव बिकॉज मेरे को लगता है कि इट विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट इन द लीगल इंडस्ट्री पर से, तो वो हाउ डू यू फोरसी कि क्या चेंज होगा? एक पहले तो मेरा खुद का असेसमेंट है कि इवन इन द IT सेक्टर जो अट्रिशंस हो रही हैं, मतलब जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ AI विच इज़ कम इन। इफ़ यू अंडरस्टैंड द IT सेक्टर, एंड तेरे ज़्यादा जान पहचान IT वाले होंगे, एंड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एज वेल, ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है। विद IT ऑर्गेनाइजेशंस तू देखेगा ना जितना ले ऑफ हो रहा है, द हायरिंग ऑल्सो हैपन्स एज अ वेरी फास्ट एंड रैपिड स्टेज, और एट अ बहुत रैपिडली वो हायर भी करते हैं, बहुत सारे क्वांटम में हायर करते हैं। इतने सारे लॉयर्स नहीं हायर होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना एक IT कंपनी हायर करती है, बिकॉज वो एक असेसमेंट मॉडल पे काम करते हैं कि ये प्रोजेक्ट यूनिलीवर का प्रोजेक्ट आने वाला है। यू हैव वर्कड विद IT कंपनी क्या? हाँ, में कैसे 2-3 कंपनीज में काम करा ना। हाँ, अच्छा ठीक है। सो आई नो हाउ डज इट वर्क। ओके। अगर मान लो तुमको पता है कि तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट आने वाला है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, या फिर किसी और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का, कुछ तुम्हें बड़ा प्रोजेक्ट करना है जो 3-4 साल तक चलेगा। तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्लेटफॉर्म यूज चलाने वाले, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे काम करने वाले रिसोर्सेज चाहिए। कुछ तुम्हारे पास होंगे, कुछ तुम्हें चाहिए उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, या फिर पाइथन वाले प्रोग्रामर्स चाहिए होते हैं। तुम क्या करोगे? धड़ल्ले से हायरिंग करोगे, ओवर एस्टिमेट कर। मैं नाम नहीं ले रहा, एक IT कंपनी है जो हर महीने 8 से 10 हज़ार एम्प्लॉइज इंजीनियर्स हायर कर रही है। 10,000 हर महीने, 10,000 रिसोर्सेज आर बीइंग हायर्ड एवरी मंथ, बिकॉज आपको पता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आ गए, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ प्रोस्पेक्टिव है, एंटीसिपेटरी हायरिंग। तो जब तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आ जाएगा तब तो तुम नहीं हायर करोगे ना, बिकॉज तब तो तुम्हारा डिलीवरेबल चालू हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे कि या तो एग्जिस्टिंग तुम्हारे पास जो रिसोर्स है वो ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, उनको तुम उधर ज़्यादा ला नहीं सकते, 8-10 लोग लाओगे जो टीम लीडर्स होंगे, बट ग्राउंड लेवल पे जो ग्राउंड पे काम करेगा रिसोर्स वो तुम्हें बहुत सारे चाहिए। तो तुमने 25-30 हज़ार हायरिंग कर ली 6 महीने में, 4 प्रोजेक्ट्स में से मान लो 2 प्रोजेक्ट्स नहीं आए, अभी आपने हायर तो कर लिया, तुम हर IT कंपनी का डेटा उठा के देख ले, कम से कम 10-20% रिसोर्सेज उनके बेंच पे बैठे होते हैं, और कंपनी उनको पैसे देती है 3 महीने 6 महीने एज पर कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन, वो 6 महीने बेंच पे रखते हैं रिसोर्स को, और तभी उनका ले ऑफ चालू होता है। तो ये देख कि ले ऑफ सबसे पहले किनका होता है, वो जो बेंच पे होते हैं, या फिर जैसे जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं जैसे Amazon या फिर एसेंचर या कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जिनको ले ऑफ करा है। वो ले ऑफ ऐसा रैंडम ले ऑफ नहीं हुआ है, एक प्रोडक्ट था जो मार्केट में वो बेच रहे थे, वो प्रोडक्ट अब उतना इफेक्टिव नहीं है ना। सो बेसिकली जो तो वो उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जो टेक्नोलॉजी पे लोग काम कर रहे थे, क्योंकि वो प्रोडक्ट सक्सेस नहीं हुआ इसलिए वो ले ऑफ्स हुए हैं। सो एक ऐसा नहीं कि सिर्फ AI आ गया या चैट जीपीटी आ गया इसलिए किसी कंपनी ने 9,000 एम्प्लॉयज निकाल दिए, नहीं यार, कितनी कंपनीज तू बता IT कंपनीज चैट जीपीटी करके सॉफ्टवेयर बना रही है, या कोडर्स को रिप्लेस थोड़ी कर दिया है अभी, इट्स इन द प्रोसेस। शायद जब AI और एडवांस हो जाए या चैट जीपीटी और एडवांस हो जाएगा तो शायद कुछ इम्पैक्ट होगा, बट ऐसा नहीं। कमिंग टू जो हम बात करें कि लॉयर्स, एक तो ये व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आपका चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी आपको असेसमेंट करके देगा कि लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हैं,
लीगल सॉल्यूशंस क्या है, बट शॉर्टकट क्या है, वे अराउंड क्या है. देखो लॉ में क्या होता है ना, इधर यूर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ और यूर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ. सो वेल सेड. करेक्ट. या तो आप लाइन के इस तरफ हो या लाइन के उस तरफ हो. ठीक है. एक चीज है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जिसको हम ग्रे एरिया बना देते हैं. राइट. तो उस ग्रे एरिया में फंसाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को टू बी नॉट कॉल्ड एज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, ये चैट जीपीटी को करने का कितना कैपेबिलिटी है अभी, इट्स हार्ड टू डिटरमिन. मान लो कोर्ट में आपको आर्ग्यूमेंट्स ड्राफ्ट कर सकता है चैट जीपीटी प्रोविजंस पढ़ के, पर जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ ये बता सकता है, आउटकम क्या निकला. बट उसमें कितने कंटेंशंस लूजिंग पार्टी के भी जज ने एडमिट करे या कॉग्निजेंस लिया. देखो मान लो किसी ने केस में कोर्ट में केस करा तो पिटिशन फाइल करा है ना, या अपेलेट जुरिसडिक्शन में अपील फाइल करा. जज ने अपेलेंट को भी सुना, रेस्पोंडेंट को भी सुना, या प्लेंटिफ को भी सुना और डिफेंडेंट को भी सुना. उसने फेवर में जजमेंट दे दिया प्लेंटिफ के, बट उसने कॉग्निजेंस रिस्पोंडेंट के भी 5 कंटेंशंस को लिया. रिस्पोंडेंट के 4 कंटेंशंस है तो उसमें से 2 एडमिसिबल होते, कॉग्निजेंस लेता है जज. तो वो चीज है कि आपको वो पढ़ के मतलब तेरा चैट जीपीटी क्या करेगा, वो बोलेगा कि इस मैटर में ये हेल्ड हुआ था, ये रेशियो डिसिडेंडी है, रेशियो डिसिडेंडी बता सकता है. पर ओबिटर डिक्टा जो हम पढ़ते थे कि ठीक है वो जजमेंट नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कुछ और भी बोला जाता है. रिस्पोंडेंट बहुत कुछ बोलता है जो एडमिसिबल होता है जज को, which can be taken as a not as a precedence but which can be taken as a reference. अगर तेरा मैटर है तो तू देख सकता है, हम मूड कोर्ट प्रिपरेशन में भी यही करते थे कि हमें पता होता है कि इस तरह के मैटर्स में अगर एसआर बम्बई का मैटर है तो उसमें रिस्पोंडेंट ने क्या क्या बोला है और उसमें से क्या क्या एडमिसिबल है. तो वो हम कंटेंशन, बिकॉज मालूम मेरे को मूड कोर्ट दिया गया और एक मैटर है सिमिलर टू एसआर बम्बई और आई एम रेस्पोंडेंट, तो मैं तो ऐसे चुप थोड़ी रहूंगा, मुझे पता है जजमेंट में पहले ही फेवर में अपेलेंट के चला जाएगा ये. तो फिर रिसर्च किस बात की? एग्जैक्टली. तो मैं तो ऐसे रिसर्च ढूंढूंगा, वो जजमेंट्स ढूंढूंगा which were held in favor of me or at least the context of it was admitted or addressed or accepted by the court of law. तो वो जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो मुझे नहीं लगता कि अभी चैट जीपीटी कर सकता है. मे बी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एआई भी इवॉल्व होता है, अपने आप को एडवांस करता है. आई हैव अ बेटर थिंग. जो मेरे को ना वरुण माया या पता नहीं कौन था, वन ऑफ द यूट्यूबर, ही सेड दैट व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू इट. सो एआई इज नॉट गोइंग टू टेक अवे द जॉब्स, इट इज द पर्सन यूजिंग द एआई. सो अल्टीमेटली वो पर्सन यदि सीख गया कि किस तरीके से करना है, तो वो हो सकता हो कि उसके लिए उसकी कंपनी में 2 लोग या 3 लोग एक्स्ट्रा हो, तो मे बी इट विल रिड्यूस टू फ्रॉम 3 इट विल रिड्यूस टू 1. आई थिंक कुछ दिन पहले आई थिंक नारायण मूर्ति से भी यही पूछा गया था कि जो आपका एआई आ रहा है दैट विल टेक लॉट ऑफ आईटी जॉब्स. तो ही आल्सो सेड द सेम थिंग, ह्यूमन ब्रेन इज वेरी यूनिक एंड नथिंग कैन रिप्लेस इट. अगर आप वैसे सोचो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तो 500-600 साल पहले से शुरू हो गया. उस हिसाब से तो सारी फैक्ट्रीज मशीन से ही चलनी चाहिए थी और लोगों को तो काम ही नहीं होता. आई अंडरस्टैंड कि जहां एक काम करने के लिए 1000 लोग लगते हैं वहां 400 लोग लग रहे हैं, 600 लोग की जरूरत नहीं है क्योंकि मशीन आपका काम कर दे रही है. लेकिन फिर भी अगर someone who is good at their work, someone knows to how navigate things, आप मेरा बुकिश मॉडल में चलोगे ना तो आप कहीं भी बहुत सक्सेसफुल नहीं होगे, आप compete नहीं कर पाओगे. तो एक एक्स्ट्रा एज आपको अपने लिए लाना ही पड़ेगा in order to compete. Be it competing with another person of the same gender or not a gender, same species or an AI. Absolutely. तो वो इम्पोर्टेंट है. देखो अभी see it's all a journey. हमने भी शुरू करा था तो हमें कितना आता था, हम इवॉल्व हुए, तो टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होगी. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको अपना टेक्नोलॉजी को ना अपना दुश्मन नहीं समझना है, हमें समझना है कि हम चैट जीपीटी कैसे हेल्प यूज कर सकते हैं. पर क्या तुम सिर्फ चैट जीपीटी का आंसर क्वेश्चन देकर कि चैट जीपीटी ने जो लिखा वो तुम किसी को दे सकते हो, कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं. You have to do your own research. Chat GPT is a support system. It's like a engine which will help you to do better at what you're doing. Efficiently. Efficiency अपने तुम्हारा बढ़ा सकता है.
agreed. है ना? हो सकता है, बिल्कुल totally. पर मान लो फ्रिज है जो तुम्हारा खाना रख सकता है, पर कुकिंग तो तुमको खुद ही करनी है Ultimately, सही बात करेक्ट। है। MDH तुमको एक मिक्स्ड मसाला दे सकता है, लेकिन कितना प्रोपोर्शन में डालना है, कितने लोगों के बनाने के लिए, वो कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करना है। हो सकता है 50 साल में 20 साल में एक रोबोट भी आ जाएगा जो हम टीवीज में देखते थे, वो सब कुछ करेगा। बट ठीक है, we'll see. I think see evolution is the form of life. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी मशीन जो है, तुम्हारा टेलीविजन है पहले कैसा था, वो इम्प्रूव करके आज के फॉर्म में आया है। सही बात। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि लोग इन्वेंशन खराब था। हाँ, इन्वेंशन खराब था, या फिर अभी भी तुम्हारा वो जो NMACC है अभी जो नीता अंबानी ने शुरू करा, आर्ट कल्चर सेंटर, तो लोग गए ना कल्चर सेंटर देखने, मैं गया था। व्हाट अ प्लेस। और यहाँ पे तुम्हारा वो बांद्रा में है क्या चीज आर्ट कल्चर सेंटर? इट इज वन प्लेस वेयर ऑल दी कल्चरल थिंग्स ऑफ इंडिया, मतलब जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, थिएटर काइंड ऑफ? नहीं, बहुत कुछ है वहाँ पे। जैसे एक है तुम्हारा जैसे वो होता है ना गैलरी, पिक्चर गैलरीज होती है, तो वहाँ पर सारे आर्टिस्ट्स के पिक्चर गैलरीज लगी हुई है। एक है सेंटर, बहुत बड़ा है, इट्स ह्यूज, ह्यूमंगस। सो अलग अलग एरियाज हैं डिफाइंड। एक जैसे वहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर इंडियन फैशन के बारे में बताया गया है, तो उसमें सारे सब्यसाची, शनेल और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं फैशन के, उन सब के एंटिक डिज़ाइंस लगे हुए हैं मैनिक्विन्स में। सो अगर कोई डिज़ाइनर है जिसने, शनेल ने कुछ डिज़ाइन करा था 1954 में, जिसमें इंडियन सिल्क यूज़ हुआ था, या फिर इससे आप क्या कह रहे थे, या एनिमेसी से? वो मतलब मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी जो दिखाया गया है कि जो इंडियन आर्टिजन्स हैं, मतलब जो अगर कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, तो एक मैं देख रहा था, एक अंकल जी हैं जो जम्मू के थे, वो एक शॉल बनाते हैं जिसको बनाने में 8 से 9 साल लगता है। पश्मीना नहीं, पश्मीना तो एक प्रकार का वूल है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वूल। पश्मीना शॉल होता है, उससे पश्मीना एक गोट का नाम है एक्चुअली। अच्छा। उससे वो वूल निकलता है और उससे फिर वो बनता है। पर एक जो नक्काशी का काम होता है, मतलब जो एक फाइन वर्क इन द शॉल दैट अंकल विच वाज डूइंग, ही सेड उसको बनाने में 7 से 8 साल लगता है। बिकॉज वो जितना भी प्रिंटिंग का काम जो तुमको ऐसा दिखता है ना, वो सब हाथ से मैनुअली सिल के कर रहे हैं वो, और एक एक शॉल 4-4, 5-5 लाख रुपए में बिकती है। 8 साल का। तो ऐसा नहीं है, ठीक है उस तरह के लोग कम है, पर प्रिंटिंग उस आर्ट फॉर्म को खत्म नहीं कर सकता है। वेल सेड, करेक्ट, वेल सेड। तो कुछ वैसे ही है, लॉयरिंग भी उसी तरह का एक स्किल है जो कितना भी AI आया जाए, मेरे हिसाब से वो खत्म नहीं होगा। वी शुड टेक दिस एज अ सपोर्ट सिस्टम, वी शुड टेक दिस एज अ फैसिलिटेटर टू डू आवर जॉब बेटर। मे बी हमको इस तरह का AI कोर्ट प्रोसीजर्स में लगाना चाहिए, सो दैट जितने पेंडिंग केसेस हैं वो जल्दी क्लोज हो जाए। मे बी दीज चैट GPT कैन हेल्प जजेस, यू नो, कि उतनी जितनी सारी फाइल्स बैठ के पढ़नी है, मे बी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करे उनको कि पॉइंटर्स, बुलेट्स बना के, जैसे हम अपने सीनियर्स के लिए नोट्स बना के दे देते कि ये पूरा फाइल पढ़ लिया, सिनॉप्सिस बना के दे दिया, सो दैट व्हेन दे हैव टू गो एंड plead in the court tomorrow, वो इतनी बड़ी फाइल बैठ के उनको नहीं पढ़नी पड़े। Judges should listen to this. I mean, I'm just saying कि where आप जहां बोलते हो कि lakhs and lakhs of cases are pending, let's use this chat GPT or any AI to help our judges, so that summarize कर सके, so that the decision में आसानी हो, in terms of at least facilitating them, so that वो matters जल्दी quickly read कर सके, उनको assess जल्दी कर सके, so that they can take up more cases in a day. 50 केसेस की जगह 60, 70, 80, 90 केसेस ले सके, डिस्पोजल जल्दी होगा मैटर्स का। Efficiency of judges is also a big thing, so maybe AI can help in that. Obviously that can help, but in a controlled fashion. वो टर्मिनेटर नहीं बनना चाहिए कि AI has overcome the. होगा भी नहीं सर, I don't think so. Judges को redundant कर देगी। Not judges, I'm saying in a generic scenario, जो मूवी में दिखाता है टर्मिनेटर्स में कि AI ने हर इंसान को खत्म कर दिया, they became our enemy. See, वो doomsday scenario। in terms of कि जब अगर AI ऐसा बन जाए कि हर इंसान को काम ही ना करना पड़े,
तो फिर वो दैट्स अ फॉर्म ऑफ एनिमी, राइट? तो वो भी नहीं है, बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल टू फिगर आउट, आई थिंक कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, सो दैट डजंट इट शुड बी मोर ऑफ अ फैसिलिटेटर देन नॉट जॉब स्नैचिंग टेक्नोलॉजी. पर ठीक है, आई मीन दैट इज व्हाट इट इज. अभी क्या कर सकते हैं. सही बात. It's a pleasure, sir, discussing with you. So before we wrap up this session, so I just wanted to ask you, like, what is that one piece of advice that you want to give someone who is actually wanting to build career in law, like the way on, or someone who wants to build on a similar path the way you have gone. तो उसके लिए आप मतलब क्या कहना चाहते हो? With that, I mean, we can wrap that. बहुत सारी चीज़ें हैं. एक तो आई कैन शेयर व्हाट ऑल आई हैव लर्नड, या जो मिथ्स मेरे दिमाग में थे व्हेन आई स्टार्टेड माय लॉ स्कूल, इज कि एक तो कि इफ यू आर नॉट स्टडीइंग इन अ नेशनल लॉ स्कूल, दैट डजंट मीन यू आर नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. इट डजंट मीन दैट you will not do excellent in your life. Myths busted. Second, कि be honest to yourself. वो रट करके नंबर लाना ठीक है, आपको 8-9 CGPA आ जाएगा, बट हर चीज़ की तरह सोल इज इम्पोर्टेंट. सो व्हेन आप जब पढ़ते हो तो वो क्या बोल रहा है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वो फुनसुक वांगड़ू वाला डायलॉग है कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी. अभी कितने उनके जैसी कामयाबी पता नहीं आएगी कि नहीं, बट एटलीस्ट यू विल डू गुड इन लाइफ. थर्ड, ये मुझे वन ऑफ माय सीनियर्स उन्होंने एक बार पूछा था या बताया था, विच आई टेल एवरीवन, जो भी मेरे को मिलता है यंगस्टर या फिर जो हु इज न्यू इन द प्रोफेशन. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो ठीक है, आप काम करते हो, आप डिलीवरेबल देते हो, कंपनी आपको पैसे देती है, पर जब आप रात को घर जाते हो काम करके, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये तो मैंने कंपनी के लिए किया, मैंने खुद के लिए क्या किया. व्हाट हैव आई लर्नड एज एन इंडिविजुअल. वन, एज एन एम्प्लॉय यू आर डिलीवरिंग समथिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. कुछ काम आपको करने के लिए बोला गया, आपने करा. जैसे तुझे बोला गया लोमाश ये रिपोर्ट पढ़ ले, या ये चेकलिस्ट बना दे, या ये लॉ का इंटरप्रिटेशन बता दे, तो वो तो आपने बना दिया. पर अगर वो आपने खुद नहीं सीखा और वो घर जाके भी आपके दिमाग में नहीं रहा, तो फिर आपने अपने लिए क्या किया? बिकॉज आप ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस तो बना रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन का डिलीवरेबल तो दे रहे हो, पर वो लर्निंग, यू विल वर्क इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, यू विल वर्क ऑन मल्टीपल थिंग्स. तो वो जो बैकअप यहाँ अगर नहीं बन रहा है, जो आप कर रहे हो वो आप अगर नहीं सीख रहे हो, so how will you grow? तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये तो मैं कंपनी के लिए कर रहा हूं, तो उससे क्या होता है ना, दो चीजें होती है. एक, द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इंप्रूव्स सिग्निफिकेंटली, बिकॉज आप सिर्फ एक डिलीवरेबल की तरह उसको काम नहीं कर रहे, आप उसको एक लर्निंग की तरह कर रहे हो. तो आप कंपनी को तो वो डिलीवरेबल दे रहे हो, बट उसमें आप अपना लर्निंग भी ढूंढ रहे हो. तो वो लर्निंग तो ऐसा तो नहीं कि वो मैंने सीख लिया पर इसमें मैं लिखूंगा नहीं. तो आपने अपनी लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट या whatever you're doing, that will come automatically when you'll frame your reply, your draft, your opinion. But that learning which you're getting out of your research work or whatever activity you're doing, that will remain with you. So अगर तुम्हें को पूछेगा ना कि मैंने 8 साल पहले पीएफ में कुछ पढ़ा था या रिसर्च करा था, वो मुझे याद होगा. क्यों? क्योंकि वो मैंने सोचा था कि अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे मालूम होना चाहिए. जब भी मैं कहीं काम करता हूं तो एक डिलीवरेबल बनाता हूं, पर मैं एक फोल्डर बना के रखता हूं कि ये मेरे नॉलेज के लिए है. मैं घर जाके कभी टाइम मिलेगा तो मैं भी खुद पढ़ूंगा इसको, और ताकि एक ये भी होता है ना कि आपका डिलीवरेबल इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट आर हाउ मेनी मैन आवर्स आप लगा रहे हो. वो डिपेंड करता है कि कितना आपको काम करने बोला गया है. सही बात. पर खुद के लर्निंग के लिए कोई मैन आवर्स नहीं है. मैं 15 घंटे भी एक छोटा आर्टिकल पढ़ पे समय लगा सकता हूँ, बिकॉज मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे उससे बहुत नॉलेज मिलेगा. सो दैट इज हाउ यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, एंड दैट इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट. कि एक स्मॉल टाउन का बंदा अगर हु स्टार्ट्स
with no one knowing anyone in the legal fraternity, अगर 11,000 से जॉब शुरू करता है and is at a decent level, and people, there are people जो में से 4 times ज़्यादा कमा रहे हैं with the same background, they are only able to do that because they have their own personal interest or that zeal of learning. So obviously. So राम जेठमलानी ने ना, I think when he was 94, 95 एक इंटरव्यू दिया था and he said that I'm still a student of law. So someone who has achieved so much in life, and at the age of 94, if he considers himself as a student of law, हम तो भी बच्चे भी नहीं, हम तो एटम मॉलिक्यूल्स वो सब हैं. So हर दिन आपको सीखना है, लर्न करना है, और इवेंचुअली वो आप अपने आप देखोगे ना कि अपने आप आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आता जाएगा एज अ प्रोफेशनल. एंड व्हेन यू आर अ गुड प्रोफेशनल, वो ना आपके पर्सनालिटी को भी बहुत इम्पैक्ट करता है. अगर आप सिस्टमैटिक हो अपने प्रोफेशन में, हर दिन का टू डू लिस्ट बनाते हो, हर दिन का टैट रखते हो कि ये है, तो आपका ना वो पर्सनालिटी शेपिंग में आ जाता है. आप घर के काम में भी सोचोगे ना, संडे को उठ के मेरा टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, मुझे 4 चीज़ें क्या करनी है, ग्रोसरी लाना है, शॉपिंग पे जाना है, सफाई करनी है, और उसका टैट भी रखोगे कि ये मुझे आज खत्म कर लेना है. तो द वे यू आर एज अ प्रोफेशनल, दैट shapes very much the way you are as an individual in a personal way. वो important. I mean, I love that answer. I love that. I think we can wrap the session. Thank you, sir. I mean, it was a pleasure having you. Thank you. I think we have met after a long time, so it was great meeting you. I met you as a kid who came out of college. Yeah. And now you are a married man. I think you have gained a lot of wisdom during these years. A lot of weight also, sir. Yeah. But good interacting with you. I think I'm happy that I can share my experience. अगर किसी को 1%, 1 ounce of improvement someone can feel in their life, listening to this, it's amazing. Thank you, sir. Thank you. It was a pleasure having you. Thank you.